Good morning, children. How are you? Hope you are fine and healthy and following the rules of caution from coronavirus. Okay? So, children, this is your English class and I am your teacher. Alright? Today, we will do English practice book, okay, page number 2nd and 3rd, and it is based on vowel. I think Anjana ma'am has taught you vowel. Yes, children? So I will give you a little glance only, okay? I will explain it shortly because Anjana ma'am has already taught you vowel. Okay, children? So let's start vowels. Okay. Children, do you know that there are 20, you must have knowing that there are 26 alphabets in English. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yes, there are 26 in numbers. Okay. But from this 26 alphabets, there are 5 vowels. Okay. There are 5 vowels. They are A, E, I, O, U, and rest of 21 alphabets are called consonants. Okay, children? So, let's start vowels, children. Yes, vowels. V-O-W-E-L-S, vowels. Okay? And today's date is 10th of June 2020 and today's day is Wednesday. Okay, Wednesday, W-E-D-N-E-S-D-A-Y, Wednesday. Okay, so let's start vowels. As I have told you, there are 5 vowels. Okay, A, E, I, O, U. Okay, sound words. Have you heard sound words, children? Okay, A sound words. We will write A sound words by using A vowel, like bag, B-A-G, bag. A vowel is here. Can you see? Yes, A आ गया यहाँ पे. Likewise, one more. Can you tell me? Bag and cap. Okay. Then cat. Yes. A is there, isn't it? They are called A sound words. Alright. Now come to E sound words. E sound words like bed. Okay. Red. And den. Alright. So E sound word is there. E vowel. We are using vowel E. Okay, children? Understood? Now come to I sound word. Big. B-I-G, big. Yes. Then tin. Bin. We used I sound word. We used I vowel here. Yes, na, to make an I sound word. Make a I sound word. Okay, children. Now let me rub this. Okay. Now O sound words. Okay, children. Using of vowel O. Box, owl, fox. Okay, you can see now we are using O sound word here, O vowel here to make an O sound word. Box, owl, fox. Okay.
Now the last one is U sound word, vowel U. Okay, so but, put, shut. Okay children, see, we used U here to make a word. Okay, U sound word. I think you all are already knowing all the things. Okay, so no need to go in vast. So I think you understood the vowels. Okay, I've explained you vowels. A, E, I, O, U. 5 vowels are there. Rest are what? Consonants. Okay, the 21 alphabets are called consonants, and they are A, E, I, O, U. They are called vowels. Okay children, understood? Okay, now it's time to explain you the worksheet from your practice book. Okay, so let's start now. So this is your worksheet children. See, first I have taught you vowel right now. Okay, so you can see the flower. Okay, this is the flower of vowel. Okay, A, E, I, O, U. You can see it. Okay, and the words from these vowel sound words. Okay, see, bag, car, mug, tub, top, pig. Pig, I sound word. Okay, top is O sound word, tub, U sound word, mug, U sound word, car, bag, A sound word. Okay, likewise bun, sun, pen, lip, log, cot. Yes children, pin, van, bin, bus, cat, fox, then tag, hen, net, ten, get, sit, cob. ओके, तो आप जैसे जैसे देखते जाओगे वर्ड्स को आप समझ जाओगे कौन सा साउंड वर्ड है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस वर्कशीट, put the words in the correct vowel box. You can see the vowel box. नीचे आप देख सकते हैं vowel box, जिसमें A बॉक्स है, E का बॉक्स है, I का बॉक्स है, O का बॉक्स है और U का बॉक्स है. ओके बच्चे, सो यू हैव टू शॉर्ट द वर्ड्स. ठीक है, आपको इस लिस्ट में से जो लिस्ट ऊपर है वहाँ से आपको वर्ड्स की शॉर्टिंग करनी है. यू हैव टू शॉर्ट द वर्ड्स ऑफ ए, वॉवल ए. जो भी ए साउंड वर्ड है सबको इसमें से शॉर्टिंग कीजिए. ओके, और ए वाले ग्रुप में जो बॉक्स है वॉवल बॉक्स, ए वॉवल बॉक्स, उसमें फिल कर दीजिए उसी तरीके से. अच्छा, पहले वाले ए वाले में क्या होगा, एक एग्जाम्पल कार हो सकता है, CAR, कार. यस ना, तो आप उसमें कार लिख सकते हो. और इसी तरीके से जितना भी ए साउंड वर्ड है ढूंढिए इसमें से, फाइंड आउट एंड राइट डाउन इन ए बॉक्स, ए वॉवल बॉक्स. ओके, उसी तरीके से ई वॉवल बॉक्स है, उसमें आपको ई साउंड वर्ड खोजना है इस ऊपर वाले बॉक्स में से, और ई बॉक्स, ई वॉवल बॉक्स में लिखना है. वैसे ही आई का करना है, ओ का करना है और यू का करना है. ठीक है चिल्ड्रन, तो आपका ये रेडी हो जाएगा नीचे वाला बॉक्स. ठीक है, वॉवल बॉक्स. ओके, यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो इस वर्कशीट में यू हैव टू डू दिस ओनली. इज इट क्लियर टू यू? आप समझ गए ये वाला वर्कशीट, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आई थिंक बहुत ही ईजी है. सो हम लोग नेक्स्ट वाले वर्कशीट पे चलते हैं, सेकेंड वर्कशीट. ओके, सो और याद रखिएगा चिल्ड्रन, ये आपके प्रैक्टिस बुक का पेजेस है. ओके, ठीक है. सो सेकेंड वाले में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या करना है बताती हूँ आपको क्या करना है चिल्ड्रन. देखिए, चेंज द मिडिल लेटर टू मेक अ न्यू वर्ड. ओके, आपको कुछ वर्ड्स उस तरफ, यू कैन सी सम पिक्चर्स एंड सम वर्ड्स. ओके, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स बना हुआ है और उसके नाम लिखे हुए हैं. लाइक फर्स्ट इज कप, CUP,
cup. Okay. CUP, cup. You can see. Second is net, NET, net. Okay. Third one is cot, COT, cot. Okay. Fourth is tap, tap, नल, हम सबके घर में होता है. ओके, ठीक है. नंबर 5th is hat. Yes. And number 6th is cab, taxi. Yes children. सो आपने देख लिया, इधर पिक्चर बना था और उसका नाम भी दिया हुआ है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इस साइड पे राइट हैंड साइड पे भी कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं. आपको तो वैसे ही समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है, बट आपको क्या करना है, उस तरफ वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वर्ड्स है, जैसे CUP कप है ना, तो पहला लेटर और लास्ट लेटर को हम सेम रहने देंगे, लाइक C, और बाद में बीच का लेटर सिर्फ चेंज करके वी विल क्रिएट अ न्यू वर्ड. ओके, वी विल मेक अ न्यू वर्ड बाय चेंजिंग द मिडिल लेटर. हम मिडिल लेटर को चेंज करेंगे तो नया एक वर्ड बन जाएगा. जैसे कि CUP कप है अगर, तो हम CAP कैप, इस तरफ क्या करेंगे, CAP कैप. सिर्फ मिडिल लेटर को चेंज किया हमने. यस, सिर्फ मिडिल लेटर को चेंज किया और क्या बना दिया, CAP कैप. देखिए, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम है ना, C और P दोनों सेम है, सिर्फ मिडिल लेटर को हमने चेंज किया और एक नया वर्ड क्रिएट हो गया. यस चिल्ड्रन. इसी तरीके से बाकी के पिक्चर्स देखिए. सेकंड वाला मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, नट है. ओके, उसके बाद बाकी आप खुद से ट्राई करिए. अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगी. यस बच्चे, 4 रह गया नीचे. अगर आपको कोई पिक्चर ऐसा होता है जिसको कि ड्रॉ करने में, बेटा अब बिल्कुल भी गिव अप मत कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ड्राइंग बनाओगे तो आपकी ड्राइंग स्किल्स जो है वो डेवलप होगी. सो आप एकदम गिव अप ना करें, बनाएं ड्राइंग. लेकिन अगर कोई ड्राइंग ऐसा है, कोई पिक्चर ऐसा है जिसकी ड्राइंग बनाना डिफ़िकल्ट है, आपसे नहीं बनता हो, तो आप क्या करोगे कि उसको सिर्फ नंबर करके छोड़ दोगे. जैसे मैं नंबरिंग कर देती हूँ आपके लिए, इजी हो जाएगा. ओके, सबका नंबरिंग कर देती हूँ. 1 2 3 4 5 6. तो बेटा जो भी पिक्चर आप ड्रॉ नहीं कर सको उसको आप सिर्फ नंबर लिख के उसका नाम लिख देना. ओके, ठीक है. इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप छोटे बच्चे हैं, आपके लिए इतना कुछ वो नहीं है रूल, ठीक है, कि आपको करना ही करना है. आप ट्राई करो, नहीं होगा तो आप सिर्फ नाम लिख करके छोड़ देंगे. ओके चिल्ड्रन. सो आई थिंक कि आप समझ गए कि इसमें क्या करना था आपको. ओके बेटा, तो ऐसे करके बना लीजिएगा दोनों वर्कशीट्स. ये आपके प्रैक्टिस का है. हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके. ओके, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना, तो हम लोग थोड़े से वर्कशीट्स बढ़ा देंगे. ऑलराइट, क्योंकि अभी तक हमने किया नहीं था, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग द बुक. ठीक है, सो यू अंडरस्टूड नाउ. ऐसे करके बनाना है. सो आप ट्राई कीजिए, अगर बन जाए ओके, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी. ठीक है चिल्ड्रन. ओके ओके चिल्ड्रन, as we have made a rule that every English class will start with a proverb. जैसा कि हमने एक रूल बनाया था कि हर एक इंग्लिश क्लास जो है वो एक प्रोवर्ब के साथ शुरू होगा. ठीक है, ओके, बट टुडे आई हैव फॉरगॉटन टू गिव यू अ प्रोवर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, सो आई एम गिविंग यू नाउ. ओके, मैं अब आपको बता रही हूँ बेटा. So today's proverb is honesty is the best policy. I'm repeating children, honesty is the best policy. It means it always better to tell the truth than it is to lie. ठीक है, it's always better to tell the truth than it is to lie. का मतलब है चिल्ड्रन कि ईमानदारी जो है वो सर्वोत्तम नीति है. ठीक है, आपको हमेशा ईमानदार होना चाहिए बेटा. ठीक है, अगर कभी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाती है, तो इट्स बेटर कि आप उसको एक्सेप्ट करें, ना कि झूठ बोलें. जब झूठ बोलना शुरू करेंगे तो एक के बाद दूसरा और तीसरा इस तरह से आता जाएगा बातों को छुपाने के लिए, एंड इट इज़ नॉट गुड एट ऑल.
ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पहली बार में सच बोल दें, और जब आप सच बोल देंगे तो सामने वाला आपको माफ़ भी कर देगा, फॉरगिव भी कर देगा, है ना। सो दैट आप सच बोलें, इट इज़ ऑलवेज बेटर, और आपका इंप्रेशन भी अच्छा होगा कि नहीं ये तो झूठा इंसान नहीं है ना। सो कभी भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, घर में कुछ सामान टूट जाए, कुछ भी होता है बेटा, आप सच बताएंगे अपने पेरेंट को, टीचर को, किसी को भी, यस ना। और एक्सेप्ट कर लेने में, गलती एक्सेप्ट कर लेने में बिल्कुल बुराई नहीं है। सो दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी बेटा। जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, गॉड हमेशा उनकी मदद करते हैं। ओके, सो दैट आप हमेशा सच बोलिए, सच का साथ दीजिए, गलत काम नहीं करने की कोशिश करें। फिर भी अगर गलती से कुछ हो जाए तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके बेटा, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आप लोग छोटे बच्चे हैं, अभी से ये हैबिट डेवलप कर लीजिए अपने अंदर, नेवर लाई, ठीक है। अगर गलती हो जाए तो एक्सेप्ट कीजिए। होप आपको ये समझ में आया होगा, और कभी आप ट्राई करके देखिएगा। ओके, अगर आपसे कभी गलती होती है घर में या कहीं पे, स्कूल में भी, अगर स्कूल में होती है आप टीचर को बता दीजिए, और अगर घर में होती है आप पेरेंट को बता दीजिए। देखिए तुरंत तो लोग आपको माफ़ कर देंगे और खुश भी हो जाएंगे कि आपने सच कहा। ओके बेटा, सो आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोवर्ब, ठीक है। थैंक यू।